Morning, students. Myself Neha Parekh from Manibai Gujarati High School. Today we will see gravitation, class 10th, second topic means second video. In this video, we will see about the Newton's universal law of gravitation and uniform circular motion and magnitude of centripetal force. In the last video, we have seen about the uh, Kepler's law, circular motion, centripetal force, and about the gravitation. Now, Newtons have considered formulated the universal law of gravity with the help of Kepler's law. What is the Newton's universal law of gravity? It states that every object in the universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. Now, what is given? That force, there is a force and there are two objects. Suppose M1 and M2 are the two objects. We can see this here. This is M1 and M2. These are the two objects with the center R1 and R2. Okay, and the distance between the two objects is d. See, we can see in this figure 2, the distance between this is d. Okay, and there is a mass of this is object is m1 and m2. Now by the Newton state that the force between this masses or object, the force between the two objects is directly proportional to the masses, means m1 and m2, and inversely proportional to the distance between them. Okay, now as we have studied in previous classes, when there is a proportional sign and we have to remove the proportional sign, we place equal to and some constant. Here we place a constant g, which is called as the universal gravitational constant. So the force will be equal to g into m1 into m2 upon d square. Okay, that is the it states that every object in the universe attracts every other object with a definite force. Means if there is a two object, there will be force of attraction between two that object. Okay, and how it is, it depends upon the masses and it depends on the distance between them. So what we can see that if the, as we see in the earlier slide, if there will be three condition. Okay, we will study about the three condition. What is the three condition here? First of all, if the mass of the object is double, then what will happen? Here, students, as we have studied, what we have studied in earlier, it is directly proportional. F is directly proportional to m1 m2. What do you mean by direct proportion? As the force will be increased, the mass will be also increased, and vice versa. If the mass of the product mass is increases, if the object mass is increases, then force will also increase, as they are directly proportional to each other. So by the first condition, we see that if m1 is equal to twice m1, means if the mass increases, then the force will also increases, the force will also double. If means F is equal to G into twice m1 into m2 upon d square. That is, if mass is double, the force of attraction will be double. Now we will see about the second condition. If here we see that it is m1 and if the mass is half, अपन यहाँ पे देखेंगे अगर आपका मास क्या कर देते हैं, अपन उसका हाफ ले लेते हैं. अगेन ये कैसा है, आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. मास यहाँ पे कम हो रहा है
तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैसे है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में। डायरेक्ट प्रपोर्शन के होने के कारण तो सेकेंड कंडीशन में क्या होगा, इफ मास इज हाफ, यानी मास आपका हाफ हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दोनों बीच बॉडीज के बीच में होगा वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इफ मास इज हाफ, अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ऑल्सो हाफ। द थर्ड कंडीशन, व्हाट विल बी द थर्ड कंडीशन? थर्ड कंडीशन क्या रहेंगी आपकी, कि यहाँ पे अगर अपन देखते हैं व्हाट विल बी द थर्ड कंडीशन, थर्ड कंडीशन रहेंगी इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजेस। अब यहाँ पे अपन ने मास के बारे में देखा, अब थर्ड कंडीशन में देखेंगे डिस्टेंस के बारे में। इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजेस, ये तो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का अगर डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो व्हाट विल हैपन, हियर वी सी अगेन फ्रॉम द फॉर्मूला, F is directly proportional to the mass m1 and m2 and inversely proportional to the d square। यहाँ पे क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, डी स्क्वायर से है। नाउ व्हाट यू मीन बाय इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन में कोई चीज होती है तो अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होती है, अपने आप कम होती है, या फिर एक वाइस वर्सा, अगर यहाँ पे डी बढ़ेगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम होगा। मीन्स इफ द डिस्टेंस इज डबल, डी के जगह ट्वाइस डी होता है तो यहाँ पे फोर्स भी क्या होगा, 1/4 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द डिस्टेंस इज डबल, द फोर्स विल बी डिक्रीज्ड बाय 1/4। फोर्स क्या होगा यहाँ पे 1/4 से क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने 1/4 डिक्रीज, यहाँ पे वर्ड ऐड करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज्ड बाय 1/4, therefore f the force will be decreased by 1/4। now again we will see from the figure कि फोर्स यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हो अपने, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है, अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। अगर आपका मास, ये जैसे ये छोटे बॉल्स दिए थे, यहाँ पे क्या हो गया, मास क्या हो गया, डबल कर दिया, इससे डबल कर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखो यहाँ पे लाइंस क्या हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यहाँ पे यानी अगर इसका अपन मास हाफ कर देते तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी डिस्टेंस कैसे हो गया, फोर्स कैसे हो गया, कम हो गया। अगेन यहाँ पे इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजेस, यहाँ पे डिस्टेंस पहले ये तो कैसे थे, पास पास में थे, अब ये थोड़े दूर दूर में होंगे। जैसे डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, यहाँ पे कम हो जाता है। बाय हाउ मेनी क्वांटिटी, बाय 1/4 ऑफ इट्स क्वांटिटी। Now, what is F? F is a force of gravity. G is the gravitational constant. Its value is 6.67 into 10 raised to power minus 11। ये जो वैल्यू है ये फिक्स वैल्यू है, इसलिए इसको ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोला है। कांस्टेंट है यानी इसकी वैल्यू कैसी है, फिक्स है। ये m and m, इट इज m1 and m2 दो मास ले सकते हैं, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, एंड r या फिर d से भी डिनोट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया हुआ होगा। अपन यहाँ पे g की वैल्यू देखेंगे, g की वैल्यू कांस्टेंट है, कौन सी होती है g की वैल्यू, यहाँ पे 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11। इसका यूनिट जो देखेंगे वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कैसे आता है ये यूनिट, अपन एक बार देखेंगे। अब यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, F इज इक्वल टू जी m1 m इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। मैं फिर से इधर अगर लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर, कुछ भी ले सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। अब अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, जी की वैल्यू, तो ये जी की वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये डी स्क्वायर इधर जाएगा तो एफ मल्टीप्लाइड बाय डी स्क्वायर, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ऊपर के साइड न्यूमरेटर में, तो इधर नीचे जाके क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में m1 इंटू m2। समझ में आया बच्चों, कैसे किया अपन ने। पहले आपका फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में है
तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएगा क्योंकि अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, जी की, तो f मल्टीप्लाइड बाय, यानी जी इधर ही रखा, इसको इधर लेके गए, f इंटू डी स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ पे न्यूमरेटर में है तो ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के साइन इस साइड जाता है तो वो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे जी का अपन क्या देखने वाले हैं, यूनिट देखने वाले। अब अपने को पता है फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन, तो ये अपन ने यहाँ लिखा न्यूटन। डी यानी क्या हो गया, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा अपन काय में गिनते हैं, जैसे अपन ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इन मीटर। अब यहाँ पे डी स्क्वायर बोलो या आर स्क्वायर बोलो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीटर है तो मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर, एज इट इज डी स्क्वायर, यानी डिस्टेंस का स्क्वायर है या फिर आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर अपॉन m1 एंड m2। ये कैसे है, मास है, मास काय में अपन गिनते हैं, ऐसा यूनिट में अगर बोलते हैं तो केजी में गिनते हैं, किलोग्राम में गिनते हैं, तो m1 का केजी और m2 का केजी, तो m1 इंटू m2 केजी इंटू केजी विल बी केजी स्क्वायर। देयरफॉर द यूनिट ऑफ जी, जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, और इसकी फिक्स वैल्यू है कौन सी है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके बच्चों, यहाँ तक आपके आई थिंक सो पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नाउ फ्रॉम द इन द नेक्स्ट पेज वी विल सी, इट इज गिवन इन द ब्लू, आपके टेक्स्ट बुक में है ब्लू, इसमें लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आपको हमेशा आपकी टेक्स्ट बुक कैरी करके ही बैठना है बच्चों। यहाँ पे व्हाट इज गिवन, द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड the object at which the total mass of object can be assumed to be concentrated. The center of mass of a spherical object having uniform density is at its geometrical center. The center of mass of any object having uniform density is at its centroid. Now, अब कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं उसका अपन क्या बोलेंगे, जो सेंटर ऑफ मास होता है, जो मास होता है वो कहाँ पे जमा होता है, सेंट्रॉइड पे अज्यूम करते हैं कि वो कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है, सेंटर पे होता है। टोटल मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है, सेंटर पे होता है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो सपोज ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसका टोटल मास जो अज्यूम करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेट होता है वो कहाँ पे होता है, सेंट्रॉइड में होता है। अगर अगर कोई बॉडी अगर सर्कल है तो ठीक है, अगर कोई लंबा है या कोई ऐसी कोई बॉडी है आपकी तो वो इट में भी कहाँ कॉन्सेंट्रेट होंगी, वो वहां पे सेंट्रॉइड, जो बॉडी का सेंट्रॉइड होगा वहां पे वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेट होती है। इससे एक एग्जाम्पल से अपन समझते हैं, जैसे कि अपन एक हिल पे चढ़ रहे हैं, ठीक है, हिल कैसा होता है, अपवर्ड होता है, ठीक है, अपन जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो व्हाट विल हैपन, अपनी बॉडी थोड़ी सी बैकवर्ड के तरफ क्या होती है, टिल्ट होती है। उस समय अपने को बहुत भारीपन लगता है, जब अपन ऊपर चढ़ते हैं तो अपने को भारीपन होता है, तो क्या होता है कि अपना जो सेंट्राइड होगा बॉडी का, वहां पे टोटल मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है, एक पॉइंट पे टोटल क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। सो वी फील हेवियर, जब अपन चढ़ते हैं तो अपने को अपनी बॉडी हेवियर लगती है। इसी का रीजन क्या है कि जो टोटल सेंटर ऑफ मास होता है, जो अपने ऑब्जेक्ट है यानी अपना जो मास होता है, टोटल कहाँ कॉन्सेंट्रेट होता है, सेंटर पे होता है। इस जैसे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे दिया है द सेंटर ऑफ एन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड। ये जरूरी नहीं है कि इनसाइड में रहेगा या आउटसाइड, ये इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है, यानी जैसे अपन ज्योमेट्रिकल में फिगर देखा, सेंट्रॉइड जहां पे भी होगा वहां पे उसका क्या होता है, मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेट होता है। नाउ वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक। केप्लर्स ने के हेल्प से न्यूटन्स ने जो लॉ बनाया है वो कैसे हेल्पफुल है, ये अपन देखेंगे कि कैसे वो एकदम अपना हेल्पफुल है। सपोज मैं यहाँ पे एक सर्कुलर ऑर्बिट ले रही हूँ, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट ले रही हूँ, सर्कुलर मोशन ऑफ अ प्लेनेट। सपोज ये आपका जो सेंटर है वो कौन है, आपका सन है, ठीक है, यहाँ पे मैं सन लिखती हूँ, ठीक है, ये आपका सेंटर पे क्या है, आपका सन है, और ये जो प्लेनेट है वो सर्कुलर है, थोड़ा ओवल शेप दिख रहा है बट इट इज अ सर्कुलर, ठीक है, और ये यहाँ से क्या हो रहा है, ये मोशन में एक पूरा डिस्टेंस टाइम टी पीरियड में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एज दिस इज द सेंटर, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट ले रही हूँ, सपोज ये आपका एक कोई भी ऑब्जेक्ट है,
द डिस्टेंस विल बी, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल बी आर, आर क्या होंगे आपका रेडियस है। सर्कुलर ऑब्जेक्ट में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा सेंटर से और सेंटर में और ऑब्जेक्ट में वो कौन सा होगा, तो फोर्स विल बी, कौन सा फोर्स लगेगा यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे लगेगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। एज वी हैव सीन कि यहाँ पे द सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो कहाँ से गिवन है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है, जो फोर्स एक्ट होता है वो कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, अब यहाँ पे अपन आगे देखते हैं कि वो कैसे यूज होता है। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, एक कांस्टेंट स्पीड से वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। We have earlier seen that such a motion is possible only when the object is constantly acted upon by the force directed towards the center of the circle. This force is called as the centripetal force. We have studied in earlier lecture also what do you mean by centripetal force. जो center seeking force होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, centripetal फोर्स। तो यहाँ पे ही एक ऑब्जेक्ट ले लिया जो सर्कुलर मोशन में है, तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है जो बॉडी पे ऑब्जेक्ट पे वो क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसका मास रहेगा कुछ ना कुछ, तो अपन ने इसको डिनोट कर दिया m से। इफ द m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो जो कंटिन्यूस की वेलोसिटी है, कंटिन्यूस का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो उसकी क्या हो गई, v स्पीड हो गई या फिर वेलोसिटी हो गई। इट इज गिवन बाय द v वेलोसिटी एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। देयरफॉर सेंट्रीपिटल या फोर्स इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे फोर्स बोला है बच्चों, तो ये कौन सा फोर्स है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पे कंसिडर करते हैं दिस इज द सन और कोई प्लैनेट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इफ अ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन in a circular orbit in uniform circular motion, then the centripetal force acting on the planet towards the sun must be। अब ये सन है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, एक कोई तो भी प्लेनेट है, प्लेनेट क्या कर रहा है, कंटिन्यू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो सेंटर है ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कोई तो भी फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अगेन जो मैंने अभी बताया आपको ऊपर है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे दिएंगे अपन, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। आप चाहे तो ये फिगर आप आपकी टेक्स्ट बुक में ड्रॉ कर सकते हो समझने के लिए कि एक अपन ने क्या लिया, सर्कुलर मोशन पे एक सन लिया और यहाँ पे एक क्या लिया अपन ने, प्लेनेट लिया। नाउ व्हाट विल हैपन, अगेन वी नो दैट कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला अपन ने देखा हुआ है। ठीक है, अब द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्लेनेट इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट। अब यहाँ पे अगर देखते हैं ये पूरा सर्कल है, ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो ट्रेवल हो रहा है पूरा, ठीक है, ये जो पूरा डिस्टेंस है जो कवर कर रहा है वो सर्कल है, अपना सर्कल है, तो ये किसके ऊपर कवर करता है, सरकमफरेंस हो गया ये सर्कल का। तो सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल विल बी 2 pi r इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द ऑर्बिट इक्वल टू 2 pi r। एंड डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है प्लैनेट, जो प्लैनेट वन रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना है बेटा, 2 pi r। समझ में आया ये 2 pi r कहाँ से आया, r इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो अगेन अपन देखेंगे डिस्टेंस r क्या है आपका, ये डिस्टेंस, ये प्लेनेट मैंने बताया ये रेड पॉइंट से प्लेनेट है, ये आपका बीच का सेंटर का क्या है, सन। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, r रहेगा। ठीक है, टाइम टेकन, टोटल एक रिवॉल्यूशन को पूरा कंप्लीट करने को क्या लगता है, टाइम लगता है। तो कितना टाइम ले रहे हैं अपन, t। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि आपको द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज t। एज वी नो द फॉर्मूला v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, v क्या होता है, v यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अपन स्पीड बोलते, स्पीड यानी क्या हो गई आपकी, एक इसको डायरेक्शन देते तो क्या हो जाएंगी आपकी वेलोसिटी होती, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन
टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अभी अपने देखा, सर्कल में 2 पाई आर हो रहा है, तो 2 पाई आर। टाइम टेकन कितना हो गया है, टी हो गया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब अपन मूव करते हैं आगे, उसका डिराइव कैसे करते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं 2 पाई आर अपॉन टी। ऑल्सो वी नो दैट, अपन ने देखा है जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे दिया हुआ है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। तो ये जो v की वैल्यू मिली है अपने को, यहाँ पे अपन लिखेंगे v इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी। यहाँ पे क्या करेंगे, इस वाले v में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे देती हूँ मैं, m एज इट इज रखा है, v स्क्वायर की वैल्यू, v की वैल्यू क्या है 2 पाई आर अपॉन टी, ये आ गया 2 पाई आर अपॉन टी। v का स्क्वायर है इसलिए हमने यहाँ पे क्या दिया, स्क्वायर दे दिया है, और ये टी आर एज इट इज नीचे रख दिया है। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ये देखिए m एज इट इज रखा है, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये टी का स्क्वायर है तो मैं नीचे लेके आई हूँ टी स्क्वायर एंड आर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आर स्क्वायर और ये आर क्या होता है, कैंसिल होता है। फिर अपने को क्या मिलेगा, 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने को केप्लर्स का जो लॉ है, व्हाट इज केप्लर्स थर्ड लॉ, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू के। तो यहाँ पे देखो टी स्क्वायर है अपने पास, पर यहाँ पे आर है, पर वो लॉ में कैसे दिया था अपना, के इक्वल टू कांस्टेंट कैसा था अपना, के इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, इस टाइप का था अपना बच्चों। तो इस फॉर्म में इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। जब मेरे को यहाँ पे आर क्यूब चाहिए, तो जब मैं मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करूंगी तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 4m पाई स्क्वायर ये अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला, देखो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर का क्या हो गया आर क्यूब, और ये जो दूसरा आर स्क्वायर डिवाइड किया तो इसको मैंने इस साइड लिखा, इधर क्या हो गया टी स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, बट यहाँ पे डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है और न्यूमरेटर में आर क्यूब, तो k की 1 अपॉन k की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो इसको मैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ केप्लर्स लॉ, ये वैल्यू मैं यहाँ पर पुटअप करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, f इज इक्वल टू 4m पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये जो पूरी वैल्यू है, कर्सर की तरफ ध्यान देंगे बच्चों, ये पूरी वैल्यू है किसकी वैल्यू है, के की, पर के कैसा है आपका पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो पूरी कैसी आएगी, फोर्स की वैल्यू कैसी आती है, पूरी कांस्टेंट आती है। तो एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, आखिरी में अपन यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ जो है वो जो अपन न्यूटन्स लॉ में स्टार्टिंग में देखा था कि एफ के 1 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर क्यू आया था। ठीक है, डी स्क्वायर लिखोगे या फिर आप लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कहाँ से क्यों आर स्क्वायर लिया अपन ने, ये केप्लर्स के लॉ से अपन ने यहाँ पे प्रूव किया हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं, न्यूटन्स कंक्लूडेड दैट द सेंट्रिपिटल फोर्स which is the force acting on the planet is responsible for its circular motion must be inversely proportional to the square of the distance between the planet and the sun। यानी जो फोर्स जो लगता है, तो किसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड है या उनके रेडियस के ऊपर डिपेंड है। इसलिए इस लॉ को एक और नाम दिया हुआ है, इस लॉ को अपन बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोला जाता है, पोस्टुलेट द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसे एक और नाम से बोला जा सकता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर दैट another force in nature, but it controls the universe and decide its future. This is possible because of the huge mass of the planet, stars and other constitution of the universe। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के फोर्स क्या होते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में अलग अलग टाइप के
फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जब आप और मैं या फिर आपके दो फ्रेंड्स अगर स्कूल की बात करते हैं, जब हम स्कूल में एक स्टूडेंट और दूसरा स्टूडेंट अलग अलग बेंच पे बैठता है, उनके वेट के हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यस होता है। पर अपने को फोर्स फील क्यों नहीं होता है, ये अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इतना आप स्टडी करिए, भी घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।